Hello everyone. So let's continue with the first unit of chemistry in 11th class, some basic concepts of chemistry. In the last class we have talked about the basic things in chemistry and matter. Now let's talk about the properties of matter and their measurement. So when we say matter, matter is associated with two types of properties, right? So matter is associated with physical properties as well as chemical properties. Physical properties, like the properties which are associated with physical changes like boiling point, melting point, some physical parameters or quantities like density, solubility, etc. Okay. And the chemical properties are associated with chemical changes like acidity of a base, basicity of an acid, combustibility, etc. Now, because chemistry is an experimental science, okay, so we need to carry out some measurements in chemistry. And now, while carrying out the measurements, we'll definitely be measuring some of the physical quantities. So now, the measurement of these properties. Measurement of physical properties. So whenever we measure any physical property, like if we measure the boiling point of H2, the boiling point of H2 comes out to be how much beta? It comes out to be 100 degree Celsius. So any property if you take, this is associated with two things. One is the quantity related to the property. So one is quantity and the second one is unit, right? If I ask what is the density of this liquid or some liquid, or let's say water only, so the density comes out to be 1 gram per cc or per centimeter cube. So always a physical property is associated with one number and the second one is its unit. So any physical property is associated with its quantity and the second one is its unit. Okay, so first let's talk about how to measure this quantitative aspect of this physical property and then we'll talk about this unit system. Okay, so first let's talk about the quantitative measurement of physical property. Okay, so quantitative measurements mean the value. Okay, क्या नंबर आता है, क्या वैल्यू आती है. सपोज आपके सामने आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और मान लीजिए सपोज यू मेजर्ड और यू मेजर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस और आपको पता है कि उसकी जो ट्रू वैल्यू है बॉइलिंग पॉइंट की वो आनी है लेट्स से 120 डिग्री सेल्सियस. तो आपका रिजल्ट नॉट नेसेसरीली टू बी कम आउट टू बी एग्जैक्टली सेम. 120 ज़रूरी नहीं आए, उसके आसपास भी आ सकता है, हो सकता है उससे कम आए, हो सकता है उससे ज़्यादा आए. तो जो भी रिज़ल्ट आएगा उसमें कितना एक्यूरेट है वो रिज़ल्ट और कितने एरर के चांसेस हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जहाँ होंगे वहाँ पे एरर ज़रूर होंगे. ओके, सो जब हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट करेंगे तो उन एक्सपेरिमेंट्स को कैरी आउट करने के टाइम जो हमारा रिजल्ट आएगा, पहली बात उस क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो पहले रिप्रेजेंटेशन जो होगा दैट वुड ऑलवेज बी साइंटिफिक. रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगी उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इट शुड ऑलवेज बी इन साइंटिफिक लैंग्वेज. साइंटिफिक नोटेशन होना चाहिए. एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी बोलते हैं इसको, राइट. क्या है ये साइंटिफिक नोटेशन? कोई भी नंबर है, एनी नंबर यू टेक. इफ आई से द नंबर इज 32105, it should always be represented like this. The decimal, in the decimal form,
and the decimal should always be just after the first non-digit number. So in this case, first non-digit number is 3. So we can write it like this: 3.2, if this is 905. Now we have shifted the decimal from right to left, so the power would always be in positive. And how many places we have shifted? 1, 2, 3, 4. So it would be into 10 to the power 4. So this is the scientific representation of any number. Suppose the number given to you is this one, 00206 9. Then its scientific notation would be decimal should always be just after the first non-digit number. So in this case, this is the first non-digit number, beta, 2. Okay, so that decimal should be placed just after 2. So it can be represented like this: 2.069 into 10 to the power. Now because we are shifting the decimal from left to right, so we have to count the places 1, 2, 3. So into 10 to the power minus 3. Whenever we shift the decimal from left to right, it would always be 10 to the power negative. Whenever we shift the decimal from right to left, it would always be into 10 to the power positive number. Okay. So this is the scientific notation. Now while carrying out the measurement, whenever, because chemistry is experimental science, so when we are carrying out some experiment, there are always some chances of error, right? So there are possibility of error. Okay. Now if we ignore error, or how can we directly or indirectly see our result, whether the result is accurate or not? Suppose the result is some true value. Suppose the result, जो भी आपका डेटा है उसका आपने या एक्सपेरिमेंट है उसका जो ट्रू वैल्यू है, वो ट्रू वैल्यू सपोज आपका है बेटा 1000. ओके, ट्रू वैल्यू है 1000. अब मैंने सपोज आई हैव आस्क्ड 3 स्टूडेंट्स टू कैरी आउट दिस एक्सपेरिमेंट. उसका ट्रू वैल्यू कितना है? 1000 है. अब हमें चेक करना पड़ेगा किस में कितना एरर है, किसका डेटा कितना एक्यूरेट है. तो टू सी द एग्रीमेंट बिटवीन द मेजर्ड डेटा और द एक्सपेरिमेंटल डेटा एंड द ट्रू वैल्यू, वी नीड टू नो व्हाट टाइप ऑफ रिजल्ट इज दिस. और उस रिजल्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए देयर आर 2 टर्म्स, वन इज एक्यूरेसी एंड वन इज प्रिसीजन. ओके, सो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. So this clearly indicates the agreement between measured data, that is our experimental data, and our true value. Okay, agreement between measured data values and true value. That is basically accuracy and precision. Now try to understand it. What is accuracy? So our true value is 1000. If I ask 3 students to carry out the experiment, so they have got, let's say 3 students, A, B and C are 3 students. They've carried out some experiment. In the first experiment, let's suppose student A got the value 1025. In the second case, he got the value 975. In third case, he got the value, let's say 1001. Okay. In B student got, in first experiment, he got the value, let's say 982. In second case, he got the value 978. In third case, he got the value 980. Student C got the answer like this. First value is 1001. Second one is 1002 and third one is 1000. Okay. Now these are the 3 students who have carried out the experiments for something whose exact value, true value or real value is 1000. Okay. Now let's see. Let's take out their average. In this case, the mean or the average come out to be. If we add up them, it comes out to be if we divide it by 3, it comes out to be 1000.3 something.
In this case, the average comes out to, we can calculate it out, it comes out to be approximately 980. In this case, the average comes out to be 1001. Okay, so the true value was 1000, but for when student A carried out the experiment, he got the answer 1000.3, which is very close to the true value. But the values obtained by the student himself were not exactly same, or you can say similar. They were quite different from each other, the values, right? So in this case, we can say that the data points are not similar. These data points are not similar. But this is in agreement with the true value. This is in agreement with the true value. So such results are called accurate results. Such results are called accurate results, where data points can be, may or may not be in agreement, but the mean comes out to be close to the true value. Such results are called accurate, जिसमें जो डेटा पॉइंट्स हो खुद आपस में आसपास हो चाहे ना हो, बट उनका जो मीन आए वो किसके पास हो बेटा, ट्रू वैल्यू के पास हो. हमारी ट्रू वैल्यू कितनी थी 1000 एंड दिस इज 1000.3, बहुत क्लोज है, जबकि आपस में क्लोज नहीं है. ऐसे रिजल्ट को हम क्या कहेंगे, एक्यूरेट रिजल्ट. Now let's go to the B student. He got the answers which are close to each other. These three values are close to each other. But what about the experimental value and the true value? The experimental value is 980, but the true value is 1000. So we can clearly see that this is experimental result and the true value is what बेटा, it's 1000. दोनों बिल्कुल भी आसपास नहीं है, बहुत डिफरेंट एक दूसरे के, बट जो खुद की वैल्यूज़ हैं वो क्या है, एक दूसरे के आसपास है. सो सच रिजल्ट्स आर कॉल्ड प्रिसाइज रिजल्ट्स. इनको क्या कहते हैं बेटा, प्रिसाइज रिजल्ट्स. नाउ लेट्स गो टू द सी स्टूडेंट. सी स्टूडेंट के केस में इफ़ यू लुक एट द एवरेज, एवरेज इज 1001. ये जो 1001 है, दिस इज क्वाइट क्लोज टू द ट्रू वैल्यू. This is quite close to the true value because true value was 1000. ठीक है, लेकिन ये आपस में भी क्लोज हैं और ट्रू वैल्यू के भी क्लोज हैं. तो सच रिजल्ट्स आर कॉल्ड एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज. तो ऐसे रिजल्ट्स को हम क्या बोलेंगे, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज. गॉट इट? सो दिस द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन. एक्यूरेसी का मतलब क्या है, चाहे डेटा पॉइंट्स खुद आपस में एक जैसे हो ना हो, बट उनका मीन किसके इक्वल आना चाहिए, लगभग ट्रू वैल्यू के. प्रिसाइज में वो आपस में इक्वल होंगे, बट हो सकता है वो ट्रू वैल्यू के जैसे ना हो. और अगर एक्यूरेट है, प्रिसाइज है, तो वो आपस में भी इक्वल होंगे और ट्रू वैल्यू के भी इक्वल होंगे. दीज आर द बेस्ट रिजल्ट्स वेयर वी गॉट प्रिसाइज एज वेल एज एक्यूरेट रिजल्ट्स. सो लेट्स समराइज इट. What's the difference between precision and accuracy? Precision में क्या है बेटा, precision and accuracy. आप एग्जाम्पल ऊपर वाला जो हमने लिया है वो साइड कर सकते हैं. Precision means where this is in agreement or the measured values or experimental values are close to each other, but may not be close to the, किसके क्लोज ना हो, ट्रू वैल्यू. उसको हम बोलेंगे प्रिसाइज डेटा और प्रिसिशन. एक्यूरेसी में क्या होगा, देयर वुड बी द मेजर्ड वैल्यूज or the experimental values are in agreement with, measured values means the mean of these data points, in agreement with true value, right? तो स्टूडेंट ए का रिजल्ट कैसा था, एक्यूरेट था. स्टूडेंट बी का रिजल्ट कैसा था, प्रिसाइज था. देखिए ए का रिजल्ट कैसा है, एक्यूरेट है क्योंकि ये उसके इक्वल है. बी का प्रिसाइज है और सी का क्या है, एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज,
Okay, so that's about accuracy and precision. Now the next one is, after talking about accuracy and precision, we need to know about the significant figures. Significant figures का मतलब क्या होता है? हम कोई भी डेटा मतलब ये किसी भी रिजल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी क्वांटिटी में सर्टेन डिजिट्स के साथ वन डाउटफुल डिजिट भी होता है. तो बेसिकली जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं दैट गिव्स यू एन आइडिया ऑफ नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स प्लस वन डाउटफुल डिजिट. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज significant figures. राइट, कोई भी रिजल्ट रिपोर्ट करते हैं तो ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑलवेज इंडिकेट्स द सर्टेनिटी इन द रिजल्ट, कितना एक्यूरेट है आपका रिजल्ट. सो दीज आर द नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स प्लस वन डाउटफुल डिजिट. Okay, they are called significant figures. Okay, so significant figures के क्या rules होते हैं? How can we determine the number of significant? One question can be asked based on it. If you are given with a number and they ask you how many significant figures are there, तो देखो इसको हम क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में लेके चलते हैं. पहले सपोज if somebody ask you how many significant figures are there in the following. ओके, फर्स्ट केस हम ले लेते हैं 0.001250. बी हम ले लेते हैं 3.1900. सी हम ले लेते हैं बेटा इससे लेट्स से 300 या 895. ओके, सो पहले इन सब में हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कब निकाल पाएंगे? वंस वी हैव द नॉलेज ऑफ फाइंडिंग आउट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. राइट, तो क्या रूल्स होते हैं? पहला रूल कहता है इन सच नंबर्स, मानी जो डेसिमल के नंबर्स हैं क्या नहीं भी हैं तो एनी ज़ीरो बिफोर फर्स्ट नॉन डिजिट ज़ीरो, जैसे ये है नॉन ज़ीरो डिजिट, तो नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो सारे के सारे इनसिग्निफिकेंट होते हैं. राइट, तो ज़ीरोज़ को ही हम देखते हैं. ज़ीरोज़ बिफोर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, वो हम काउंट नहीं करेंगे. गॉट इट? सेकेंड रूल क्या कहता है? ज़ीरोज़ इन बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स, जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में होंगे डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट. ऑलवेज सिग्निफिकेंट. ओके, जो बीच में रहेंगे वो हमेशा क्या होंगे बेटा? सिग्निफिकेंट होंगे. थर्ड रूल कहता है, थर्ड रूल सेज दैट ज़ीरोज़ आफ्टर नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट. ओके, फॉर एग्जाम्पल अब हम एक नंबर लेते हैं. लेट्स से द नंबर इज 0.0010900. लेट्स से दिस इज द नंबर. ओके, सो हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है ये. दिस इज आर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट. नॉन ज़ीरो डिजिट. ओके, तो इससे पहले जितने भी ज़ीरोज़ हैं, ये जो ज़ीरोज़ इससे पहले हैं ये क्या है बेटा? दीज आर इनसिग्निफिकेंट. ये क्या है? इनसिग्निफिकेंट. ये नॉट सिग्निफिकेंट, विल नॉट बी काउंटिंग देम एज सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, दूसरा है हमारा ज़ीरोज़ इन बिटवीन नॉन ज़ीरो. ये इन बिटवीन नॉन ज़ीरो है. ठीक है,
दीज आर सिग्निफिकेंट, ये क्या होंगे? दीज आर सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट है आपका ज़ीरोज़ आफ्टर नॉन ज़ीरो डिजिट्स, ये जो हैं ये भी हमारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। दीज आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखो पहला नॉन ज़ीरो आप चेक करेंगे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के लेफ्ट में जितने ज़ीरोज़ होंगे नहीं होंगे सिग्निफिकेंट, नॉन डिजिट्स के बीच में जितने ज़ीरोज़ होंगे सब सिग्निफिकेंट होंगे, नॉन ज़ीरोज़ के बाद में राइट में जितने ज़ीरोज़ होंगे वो सब भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसमें हमारे पास इन टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए? देखो हम इनको सर्कल कर देते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को, या इनको हाईलाइट कर देते हैं। ये हमारे क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 1 2 3 4 and 5. So number of significant figures are 5. ओके तो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं बेटा? दे आर 5 इन नंबर। अब हम आगे चलते हैं, तो रूल्स आपको क्लियर हुए। अब ऐसा ही कोई नंबर है, लेट्स से एक ऐसा नंबर है आपका 325, तो ऐसे जो नंबर्स आते हैं दे आर कॉल्ड एग्जैक्ट नंबर्स और एक्यूरेट नंबर्स। इनको क्या कहते हैं? एग्जैक्ट नंबर्स एंड accurate numbers. ओके बेटा, सो सच नंबर्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, जिनमें डेसिमल नहीं हो, इनको दे आर ऑलवेज बी हैविंग इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। इनके पास कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम कुछ रूल्स देखते हैं जिसमें हम चेक करेंगे, सपोज यू आर एडिंग अप टू प्रॉपर्टीज और सब्ट्रैक्टिंग दैम और मल्टीप्लाइंग दैम, देन हाउ कैन वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट? सो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट figures while adding two numbers, adding, subtracting or multiplying two digits और numbers, right? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम रूल चलेगा, ठीक है? चेक करते हैं क्या रूल है। लेट्स से आपको दो नंबर्स को ऐड करना है, 1.325 एंड द सेकेंड नंबर इज 0.4, ओके? इनको हमने प्लस किया है, तो आपका प्रोडक्ट में मतलब जो भी आपका सम आएगा, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स वुड बी देयर, ये आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आप इनको ऐड कर लें बेटा। सो 5 2 7 1, ये एडिशन आ गया अपना। अब आपने वो नंबर देखना है जिसके पास डेसिमल के बाद मिनिमम प्लेसेस हो। अब अगर हम इस नंबर को देखें तो डेसिमल के बाद हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर, 1 2 and 3, और इसमें डेसिमल के बाद कितना प्लेस, ओनली 1, राइट? सो 3 डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं बेटा, 3 डेसिमल प्लेसेस, और इसमें कितना है, 1 डेसिमल प्लेस। 1 कैसे आया है, डेसिमल के बाद कितना नंबर है सिर्फ ये देखना है, इसमें है 1 और इसमें है 3, तो हमें किसको कंसीडर करना है, हमारा रिजल्ट किसके हिसाब से हमें राउंड ऑफ करना है, हमें जिसमें कम होंगे डेसिमल के बाद डिजिट्स उसके हिसाब से राउंड ऑफ करना है। तो हमें अपने रिजल्ट को इसके हिसाब से क्या करना है बेटा, राउंड ऑफ करना है। यानी हमारा रिजल्ट में रिजल्ट शुड ऑल्सो हैव 1 डेसिमल प्लेस, यानी कि डेसिमल के बाद उसमें भी एक ही डिजिट होना चाहिए। अब हमारे इसमें तो हम देखें तो 3 डिजिट है, डेसिमल ये है और उसके बाद 1 2 और 3 डिजिट हो गए। तो ऐसे में हम कैसे करेंगे बेटा, तो इसको हम क्या करेंगे, विल राउंड इट ऑफ, हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करने का मतलब हुआ हमें सिर्फ यहाँ पे एक डिजिट चाहिए, हमें ये भी हटाना है, इसको हटाया, ये 5 है। राउंडिंग ऑफ के रूल्स हम श्योर आपको पता होंगे, अगर कोई नंबर 5 से ज़्यादा है तो पहले वाले को एक बढ़ा देता है, अगर 5 से कम है तो वो पहले वाले को कोई चेंज नहीं होने देता, और अगर 5 है तो उस केस में चेक करना पड़ेगा कि वो ऑड है या इवन है। तो देखो राउंडिंग ऑफ के रूल्स में भी आपको मैं बता देती हूँ। राउंडिंग ऑफ
रूल्स, ठीक है। अगर नंबर हमारा ग्रेटर देन 5 है, लेट्स से ए नंबर है इस तरीके का, ये है नंबर 79, तो हमें इसको देखना है, दिस 9 इज़ ग्रेटर देन 5, 9 इज़ ग्रेटर देन 5, तो क्या होगा ऐसे में 7 का क्या बन जाएगा बेटा 8, ठीक है, एक बढ़ जाता है। मान लो नंबर आपका है 74, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहा आपका, ये नंबर जो है आपका 4 इज़ लेस देन 5, तो राउंड ऑफ होने के बाद ये 7 का 7 ही रहेगा। सपोज करिए थर्ड केस है आपका 75, यहाँ पे 5 आ गया, उस केस में आपको किसको चेक करना है, 5 तो बीच का है, तो आप इसको चेक करेंगे। अगर तो ये ऑड है तो ये कितना हो जाएगा 5 की वजह से 8, ठीक है, और यही नंबर अगर 85 होता तो यहाँ पे हमें चेक करना है, ये तो 5 है लेकिन ये क्या है बेटा इवन, तो ये नंबर आपका क्या रहता 8 ही रहता। तो देखो राउंड ऑफ करते टाइम क्या ध्यान में रखना है, जो डिजिट को हमें हटाना है उससे पहला इसको हटाना है, इससे पहले वाले को चेक करो, सॉरी उसी को चेक करो जिसको हटाना है, अगर वो 5 से ज़्यादा है तो पहले वाला एक बढ़ जाता है, फिर अगर इसको हटाना है ये 5 से कम है तो पहले वाला सेम रहता है। अब बात आई अगर वो है ही 5, तो उस केस में क्या होगा बेटा कि 5 अगर है तो इसको चेक करेंगे, अगर ये ऑड है तो 8 हो जाएगा, और अगर ये इवन है तो ये सेम रहेगा। जैसे सपोज करो 65 होता है, इसको हटाना है तो ये 5 है, लेकिन ये इवन है तो ये क्या रह जाएगा 6 ही रह जाएगा। ये राउंडिंग ऑफ के रूल्स होते हैं। तो हमें 5 को हटाना है, 5 को हटाने के लिए 5 को चेक करने के लिए ये चेक करना पड़ेगा, ये इवन है तो ये 2 का 2 रह गया, फिर उसके बाद 2 को भी हटाना है क्योंकि हमें तो 1 ही डेसिमल प्लेस रखना है, तो 2 लेस देन 5 है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1.7। अब इसमें काउंट कर लो, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए बेटा इसमें, नंबर ऑफ significant figures comes out to be how much 2, कितने आ गए इसमें 2। तो आप एक एग्जाम्पल इसमें करेंगे, एक प्रॉब्लम मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस देती हूँ। लेट्स से आपके पास आंसर है 0.325, 5.31, 1.02, इनको प्लस करेंगे एंड उसको जो भी रिजल्ट आएगा फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें आपको निकालना है। सेम रूल आपका इसमें सब्ट्रैक्शन में भी चलेगा बेटा। लेट्स से आपको ये करना है 5.384 माइनस 1.8 क्या आएगा, आपको क्या नंबर चेक करना है, आपको वो नंबर चेक करना है जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे, राइट, उसके हिसाब से ही आप अपना आंसर चेक करेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं, अगर हम मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो इनमें आपको दोनों को आंसर फाइंड आउट करना होगा। लेट्स से हम करवाते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन, सो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन व्हाट हैपेंस, मल्टीप्लिकेशन करवाते टाइम हमें ध्यान रखना है कि जिस भी नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, लेट्स से आपके पास 2 नंबर हैं 23.539 एंड द सेकेंड वन इज 301, आपको इनको मल्टीप्लाई करवाना है। तो आई होप यू वोंट बी हैविंग एनी डिफिकल्टी इन मल्टीप्लाइंग देम, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। आप मल्टीप्लाई करें, डेसिमल प्लेसेस प्लेस करें, उसके बाद नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर्स किससे डिसाइड करेंगे। यहाँ पे आपको डेसिमल प्लेसेस नहीं देखना है, आपको देखना है वो नंबर जिसके पास कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब 2 नंबर हैं, इसमें से इसके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है 3 और इसके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है बेटा 5, राइट। तो हमारा आंसर हम किसके हिसाब से रिपोर्ट करेंगे, द वन विच इज़ हैविंग लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स और लेस प्रिसाइज, ओके। सो आंसर शुड बी रिपोर्टेड according to the number having less significant figures, जिसके पास क्या होंगे बेटा कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, हम उसके हिसाब से हम अपना आंसर रिपोर्ट करेंगे। लेस सिग्निफिकेंट फिगर्स कह सकते हैं या लेस प्रिसाइज भी कह सकते हैं। जिसके पास कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कम प्रिसाइज है, जिसके पास ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो ज़्यादा प्रिसाइज है। तो अकॉर्डिंगली यू कैन रिपोर्ट योर आंसर। तो आप इसका भी आंसर निकालेंगे।
एक सिंपल से एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। लेट्स से आपके पास एक नंबर है, एक है 5.000 और दूसरा है आपके पास 5.0 एंड इफ़ यू वांट टू मल्टीप्लाई दैट, ओके, व्हाट वुड बी योर आंसर? तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा? अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली 25 आएगा, ठीक है। कितने प्लेसेस के बाद डेसिमल है? 1 2 3, 25 आ गया है आपका। 0 0 0, कितने ज़ीरोज़ हैं? 4 हैं, 4 के बाद यहाँ पे, तो दिस वुड बी योर आंसर, ओके। अब हमें किसके हिसाब से अपना आंसर रिपोर्ट करना है? ये है आपका 5.000, इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? आप खुद काउंट करिए। ज़ीरोज़ आफ्टर नॉन डिजिट नंबर आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, सो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसके पास है 1 2, राइट। सो लेस प्रिसाइज कौन है? ये वाला नंबर है, तो हमारा आंसर तो इसके हिसाब से ही होगा। तो इसमें आपका ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होने की वजह से इसके हिसाब से जब आंसर रिपोर्ट करेंगे तो हमारे आंसर में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऐसे में? 5.25 हमारा आंसर। हम राउंड ऑफ करके कितना कर देंगे बेटा? 25, राइट। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आउट ऑफ दीज टू, वन इज़ 4.000 and one is 4.0, which is more accurate और more precise। कौन सा ज़्यादा precise है? तो इसके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4 और इसके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2, तो विच इज़ मोर प्रिसाइज। ये ए नंबर है और ये बी नंबर है, तो कौन सा ज़्यादा प्रिसाइज है? ए इज़ मोर प्रिसाइज, दैट इज़ 4.000। ये आपका ज़्यादा प्रिसाइज रिजल्ट है, राइट। सो व्हाट वी हैव डिस्कस टुडे, एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं हम क्विकली जो हमने आज डिस्कस किया है। हम जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करेंगे उसके 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक है उसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट और एक है उसकी यूनिट। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को जब हम मेज़र करते हैं तो एरर के भी चांसेस होते हैं। तो जब भी हम कोई डेटा पॉइंट्स मेज़र करते हैं तो उसमें 2 टाइप के रिजल्ट्स आते हैं, एक है बेटा आपका एक्यूरेट रिजल्ट और एक है आपका प्रिसाइज रिजल्ट, जिसको हमने समझा एक्यूरेट का मतलब खुद आपस में चाहे इक्वल हो चाहे नहीं हो, बट ट्रू वैल्यू के इक्वल हो। प्रिसाइज का मतलब आपस में इक्वल होना ज़रूरी है, चाहे ट्रू वैल्यू के इक्वल हो चाहे ना हो। फिर हमने पढ़ा सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उतना ही हमारा रिजल्ट क्या होता है? प्रिसाइज होता है, एक्यूरेसी की तरफ होता है। सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के हमने रूल्स पढ़े हैं। एडिशन में भी कैसे, जब कैलकुलेशंस होती हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सिमिलर रूल्स हैं और मल्टीप्लिकेशन और डिविजन के सिमिलर रूल्स हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम वो नंबर के हिसाब से रिजल्ट को रिपोर्ट करते हैं जिसमें लीस्ट डेसिमल प्लेसेस हों। मल्टीप्लिकेशन डिविजन में हम उसके हिसाब से रिपोर्ट करते हैं जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हों। ओके, सो thank you so much. In the next class we'll talk about the unit system.